Hello everyone. Today we are going to discuss chapter 2 of economics of your textbook, the sectors of the Indian economy. In our previous session, we discussed about comparing the three sectors, gross domestic product and rising importance of the tertiary sector. Today we will discuss about employment of people in different sectors, creating more employment, divisions of sectors as unorganized and organized, and how to protect workers in unorganized sector. So here we start with the chapter now. Employment in India or employment of people in different sectors. In India, even if tertiary sector is dominant, still maximum population is employed in primary sector. The primary sector is still the largest employer in the country. Even if the tertiary sector contribution in GDP is increased, still maximum population is employed in primary sector only. Although the share of the primary sector in GDP of the country is just 20%, but after 65 years of independence, it still employs more than 50% of the population. This is because secondary and tertiary sectors are not producing enough employment opportunities. अब ऐसा माना जाता है कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। इंडिया में अभी भी मोर देन 50% लोग प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, पर जीडीपी कैलकुलेशन में प्राइमरी सेक्टर का सिर्फ 18 to 20% का शेयर है। फिर एक और बात बोली गई है कि इसका रीज़न एक और भी है कि जो आपका सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनका इंक्लाइनेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर की तरफ है। Now, many of the workmen in primary sector are underemployed or disguised unemployed. This means that more the number of workers are working in agriculture than actually required, although they appear to be employed, but they are actually not fully employed. अब इसमें क्या बताया गया है, अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में जितने लोग रिक्वायर्ड हैं उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर हम कुछ लोगों को प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर से हटा भी दें तो प्रोडक्शन में चेंज नहीं आना चाहिए। इस सिचुएशन को हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसका एक एग्जांपल दिया गया है कि अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स वर्क इन देयर फार्म इवन इफ देयर is a need of 2 people, still 3 more people in the family are involved for the work. In this way the work is get divided and no one is fully employed. अब इसमें क्या बताया गया है कि एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं जो कि एक फार्म में काम कर रहे हैं। ज़रूरत वहाँ सिर्फ 2 लोगों की है, लेकिन 3 बाकी के भी जो लोग हैं वो भी उसमें काम कर रहे हैं। तो काम को जो है क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, जिससे कि सारे ही लोग जो हैं वो पाँचों के पाँचों वो फुली एम्प्लॉयड नहीं हैं। How to create more employment. Employment can be given to people by identifying, promoting, and locating industries and services in semi rural areas. Every state or region has the potential for increasing the income and employment for people in that area. It can be done by tourism or regional craft industry. एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के बहुत सारे सल्यूशंस हैं। एक सल्यूशन है कि गवर्नमेंट प्राइमरी सेक्टर में इन्वेस्ट करे, उनके लिए इरिगेशन फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंक्रीज़ करें, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। सेकेंड सल्यूशन है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ बनाई जाए सेमी रूरल एरियाज़ में, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले उसमें। फिर एक और सल्यूशन है कि गवर्नमेंट टूरिज़्म को प्रमोट करे, जिसकी वजह से फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हो और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो। The central government in India made a law implementing the right to work in about 625 districts of India, which is called Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) 2005. Under this, all those who are able to and are in need of work in rural areas are guaranteed 100 days of employment in a year by the government. If the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowances to the people. अब अगर हम शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की बात करें तो एक सोल्यूशन था जो गवर्नमेंट ने 2005 में इम्प्लीमेंट किया था, वो था MGNREGA, दैट इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
इस एक्ट में मोर देन 625 डिस्ट्रिक्ट के जो सिटीजन्स हैं उनको 100 डेज से ज़्यादा एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, और अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाई तो उनको एम्प्लॉयमेंट अलाउंस दी जाएगी, और ये एक्ट लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत यूज़फुल प्रूफ हुआ। Difference between organized and unorganized sectors. Organized sectors are registered by the government and have to follow its rules and regulations, while unorganized sectors are largely outside the control of the government. Second is workers in the organized sectors enjoy security of employment, while in the unorganized sector there is no job security. Third is organized sectors are expected to work only a fixed number of hours, while in unorganized sector there is no pay for overtime working. Last one is organized sector workers get paid leave, payment during holidays, provident fund, gratuity, medical benefits, etc., while no such benefits are given in unorganized sector. अब इसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस के बारे में। पहला डिफरेंस है इस ऑर्गेनाइज सेक्टर को गवर्नमेंट रजिस्टर करती है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को गवर्नमेंट रजिस्टर नहीं करती। सेकंड इज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर में टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉलो की जाती है, पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉलो नहीं की जाती। देन थर्ड इज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर में फैक्ट्रीज़ एक्ट और मिनिमम वेज एक्ट ये फॉलो किए जाते हैं, पर अनऑर्गेनाइज में ये सब एक्ट फॉलो नहीं किए जाते। फोर्थ इज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर में फ़िक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, जॉब सिक्योरिटी होती है, हेल्थ बेनिफिट्स और पेड लीव्स भी होती है, पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑर्गेनाइज सेक्टर के एग्जांपल हैं स्कूल्स, बैंक्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के एग्जांपल्स हैं शॉप्स, वर्कर्स, वेंडर्स, फैक्ट्री वर्कर्स। तो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्शन देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। देयर इज़ अ नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। Here are a few points. First is the government can fix the minimum wages rate and working hours. Second, the government can provide cheap loans to self-employed people. Third, government can provide cheap and affordable basic services like education, health, food to these workers. And fourth and last one is the government can frame new laws which can provide provisions for overtime, paid leaves, leave due to sickness, etc. अब इसमें हम बात करेंगे कि ऐसी कुछ चीज़ें करनी चाहिए गवर्नमेंट को जिससे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। पहला है कि गवर्नमेंट को फिक्स करने चाहिए मिनिमम वेज रेट और वर्किंग आवर्स इन वर्कर्स के लिए। दूसरा है कि गवर्नमेंट को चीप लोन्स प्रोवाइड करने चाहिए उन लोगों को जो अपना खुद का कुछ काम शुरू करना चाहते हैं। थर्ड इज़ कि गवर्नमेंट को बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए इन वर्कर्स को, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ एंड फूड। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज़ गवर्नमेंट को कुछ लॉज बनाने चाहिए जिसमें कि उनको ओवर टाइम पे किया जाए, पेड लीव दी जाए और उनको सिक लीव भी दी जाए। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स।